أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خوشگشاہوں کو تازہ غلاب دیتے ہیں اہل پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اپنی جواب دیتے ہیں اور ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر نبی کا نام جب آئے تو دیوانے جھوم جاتے ہیں کیونکہ حلال خون ہے ان کے وجود کے اندر محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں اس عقیدت سے پڑھیں اس محبت سے پڑھیں کہ ہم یہاں پہ جامع مسجد کے اندر بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہیں گنبد حجرہ میں بیٹھ کے زہرا کے بابا ہمارا درود سن بھی رہے ہیں اور ہمارے درود کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عالیہ کے اندر اپنی عقیدتوں و محبتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین محترم و سامعین ذی وقار بالخصوص مسند صدارت پہ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاری محمد انصاری گیلانی صاحب اور باقی محفل پیکر خلوص و محبت محترم جناب کبیر احمد عطاری صاحب خالق کریم کی بارگاہ ہے لم یزل میں دعا ہے اللہ کریم ان کی یہ محفل پاک اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس محفل پاک کو ذریعہ نجات بنائے آمین اور ہم سب کے لیے اس محفل پاک کو کفارہ سے یاد بنائے اللہ ہم سب کو اس محفل پاک کی جو فیوز و برکات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے احباب سے قدر کتاب رحمت سے کچھ کلمات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اسی کے ضمن ظاہر میں سب باتیں آپ کے سامنے اس کر کے بات کو سمجھ لیتا ہوں یہ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے اور اولاً آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرا مزاج بڑا بیان میرا شعلہ بیانی والا نہیں ہوتا بس سمپل سی باتیں ہوتی ہیں اب آپ سے گزارش ہے کہ اس کو قبول فرمائیے گا اللہ خالق کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میرے سونے محبوب جو بھی سائل آپ کے در پہ آتا ہے فَلَا تَنْهَرْ اس کو جھڑکے مت اللہ اب یہ نہیں ارشاد فرمایا اے بابو کوئی دنیا مانگنے والا آتا ہے کوئی جنت مانگنے والا آتا ہے کوئی اولاد مانگنے والا آتا ہے کوئی سونا چاندی مانگنے والا آتا ہے خالق کریم نے مطلق ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سبحان اللہ اے بابو کوئی اولاد مانگنے والا ہے فَلَا تَنْهَرْ کوئی جنت مانگنے والا ہے فَلَا تَنْهَرْ کوئی اے بابو کوئی ہیرے جوہرات مانگنے والا ہے فَلَا تَنْهَرْ یعنی سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو یہاں گیرٹی لگائی میرے محبوب وہ مانگنے والا دنیا مانگ رہا ہے وہ مانگنے والا جنت مانگ رہا ہے اب آپ اسی قدر ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ آج کے یہ سنی کا عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ صدقہ کرنے والا ہے اور کائنات کے اندر جو نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں جو کائنات کے اندر رزق بانٹا جاتا ہے
कायनात के अंदर जो नेमतें बंदों को मिलती हैं वो अल्लाह की अता करदा होती हैं, मुस्तफ़ा की तकसीम करदा होती हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि अल्लाह अता करने वाला है और मुस्तफ़ा करीम तकसीम फरमाने वाला है। क़िबला तशरीफ़ फरमाने, बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक है, मेरे और आपके लजपाल आकर इरशाद फरमाती है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना क़ासिम वल्लाहु युती, फरमाया कि मैं सब कुछ तकसीम करने वाला हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह सब कुछ अता करने वाला है और मैं सब कुछ तकसीम करने वाला हूँ। अना क़ासिम वल्लाहु युती, मेरे सोने महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह सब कुछ अता करता है और मैं मोहम्मद सब कुछ तकसीम फरमाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अकीदा है कि हमें जो कुछ भी मिला है ये कमली वाले आका अलैहिस्सलाम के सदक़े से मिला। और यहाँ पे आला हज़रत फरमाते हैं कि वहाँ का जूद करम है शाहिद था तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले हैं गैर की ठोकर पे न डाला था, चिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सजदा तेरा, वाह क्या जूद करम है शाहिद था तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब आका यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। माया की आना क़ासिम वल्लाहु युती, कि मैं सब कुछ तकसीम करता हूँ, मेरा अल्लाह सब कुछ अता फरमाता है। तो सुनिए मेरे और आपके इमाम हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं कि हुजूर के पास अगर कोई साइल आता ना, हुजूर अगर उसको कुछ देना चाहते हैं हुजूर नाम फरमाते हैं, और अगर हुजूर कुछ उसको ना देना चाहते हुजूर खामोश रहते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर के पास एक साइल आया, उसने कुछ सवाल किया, हुजूर खामोश थे। उसने फिर सवाल किया, हुजूर खामोश थे। उसने जब तीसरी बार सवाल किया ना तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसा सवाल करने वाले माँ क्या मांगता है। अल्लाह। साहबा कहते हैं कि हमें उस पे रश्क आया कि कहीं ये हुजूर से जन्नत का सवाल न करे। देखो कितना प्यारा अकीदा है कि सहाबा कहते हैं कि कहीं ये हुजूर से जन्नत ना मांग ले, लेकिन सहाबा जानते थे कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दुनिया भी अता करते हैं और जन्नत भी तकसीम करते हैं। वो इरादी था ना, उसने कहा हुजूर एक सवारी दे दें। मांगने का तरीका नहीं आता था, वरना कोई एक बार मांगता है अफसोस हो मांगने दे, दीवाने जो भी मांगने में शहे अबरार ने दे। माशाअल्लाह। उसने कहा हुजूर सवारी दे दें। हुजूर ने फरमाया ये सवारी तुम्हारी है। हुजूर ने फरमाया माँ और क्या मांगता है। उसने कहा हुजूर कुछ सोना चांदी दे दें। हुजूर ने फरमाया ये सोना चांदी तुम्हारा। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया और मांग क्या मांगता है। देहाती था ना, मांगने का तरीका नहीं आता था। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबा इसकी मांग में और बनी इसराइल की बुढ़िया की मांग में बड़ा फर्क है। साहबा ने कहा हुजूर बनी इसराइल की बुढ़िया ने क्या मांगा था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाती हैं कि जब जनाब मूसा को हुक्म हुआ ना सवारियां लेकर दरिया अबूर कर जाए, तो जब दरिया के पास पहुंचते हैं तो सवारियों का रुख दोबारा फिर पीछे की तरफ मोड़ दिया जाता है। जनाब मूसा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं मालिक करीम आगे दरिया है, पीछे फिरौन की फौज है, क्या करूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे करीम आप मेरे नबी हजरत यूसुफ की कब्र के बिल्कुल करीब हैं, ऐसा करिए कि उनका जैसे अक्सर उठाइए और अपने साथ ले जाइए, आप दरिया अबूर जाइए। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने लोगों से पूछा कि बताओ हजरत यूसुफ की कब्र किधर है। हुजूर फरमाते हैं कि हजरत जनाब यूसुफ की कब्र बिल्कुल जमीन के बराबर हो चुकी थी, पता नहीं चल रहा था जनाब यूसुफ की कब्र किधर है। हुजूर फरमाते हैं कि फिर लोगों ने कहा ऐ करीम फलां मुकाम पे बुढ़िया रहती है, उसको पता है कि जनाब यूसुफ की कब्र किधर है। तो जब बुढ़िया को लाया गया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बताओ जनाब यूसुफ की कब्र किधर है। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगी जब तक आपसे मैं जिस चीज का सवाल करूं आप मुझे वो अता न कर दे, तब तक नहीं बताऊंगा। जनाब मूसा कहते हैं कि मां क्या मांगती है, अल्लाह ने हमें कलीम बनाया है, जो मांगोगी हम अता कर देंगे। तो हुजूर फरमाते हैं कि उसने कहा कि जन्नत में मांगती हूँ, जन्नत में जिस दर्जे में आपने रहना है वो दर्जा में मांगती हूँ। सुभान अल्लाह। जन्नत में मांगती हूँ और जन्नत में जिस दर्जे में आपने रहना है वो दर्जा भी मांगती हूँ, आपका कुर्ब भी मांगती हूँ। जनाब मूसा कह रहे हैं जन्नत मांग, जन्नत में मेरी रफाकत ना मांग, जन्नत मांग, जन्नत में मेरा कुर्ब ना मांग।
जन्नत मांग, जिस दर्जे में मैंने रहना है वो दर्जा ना मांग। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, मेरे मुसाम हमने आपको करीम बनाया है, आप इसको जन्नत भी दे दें और जन्नत में अपनी रफाकत भी दे दें। सुभान ये अल्लाह। करीम है, जन्नत भी दे रहे हैं, जन्नत में अपनी रफाकत भी दे रहे हैं। तो आज के सुन्नी का अकीदा ये होना चाहिए कि हमें जो भी मिलता है मुस्तफा करीम के सदके से मिलता है। देता खुदा है, इसमें कुछ शक नहीं, मगर देता है नेमतें वो मोहम्मद के पाक। सुभान